So, today Mr. Rohit sir will speak on the essentials of business communication, how communication skills play an important role in flourishing a business, how these skills are helpful to handle different people, difficult people, or difficult situations. With this, I would like to invite Rohit sir. Over to you, sir. Thank you so much, ma'am, Harpreet Kaur, ma'am. And I would all like to welcome you all to this episode, this session on communication. Now, for example, if you send flowers, एक bouquet लेते हो, आप किसी को भेजते हो, put a tag, एक tag नहीं आता, एक tag नहीं लगाया आपने. अब tag नहीं लगाया तो it might be a surprise कि किसी को आप surprise देना चाहते हो. Then it's fine. पर उसको आप complete कैसे करोगे? Complete ऐसे करोगे कि आप उसको एक call करोगे. Hey, did you receive my flowers? आपको मेरे flower bouquet मिला? So then the person would respond, oh, okay, it was you. आपने भेजे वो. So then the circle is completed. The communication is completed by a feedback, right? But if there's no feedback, so then एक thought आएगा, ये किसने भेजा है? किसने भेजा है, क्या करा है, कौन है ये, इसके पीछे लॉजिक क्या था? So all that questions will come into your mind. All those things will start flowing in your mind. So I'll just brief you with a small story in between. There was this girl who just came from a departmental store. वो departmental store से घर वापस आती है तो उसको एक basket मिलती है. Vegetables और fruits होते हैं. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं पॉपअप करके कि ये किसने भेजा, ये कौन है, कहाँ से, कैसे. तो वो फाइनली वो अप्रोच करती है बास्केट की तरफ. बास्केट में एक टैग लगा होता है. So now seeing that tag, she is relieved. बिल्कुल रिलीव हो गई वो. क्यों? क्योंकि उसको मालूम था जिस बंदे ने जिसने भेजा है वो उसको जानती थी. शी वॉज फेमिलियर विद. ऑन द टॉप ऑफ इट शी रिसीव्स अ कॉल. जैसे ही वो देख रही थी टैग को, उसको क्लियर हो गया था सब कुछ दिमाग में. सो दैट फ्रॉम द जेंटलमैन हु हैज सेंड, तो उसने फिर कंप्लीट करके बोला दैट आई हैव सेंड माय ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम माय फार्म. तो आप प्लीज ट्राई करके देखना इनको. So then they carried on. So this is the process of communication, right? It's important to complete it. You need to take the feedback from the send कर दिया, एक चीज हो गई, आपको पता भी लग गया, एक जो टैग लगा था उससे पता किसने भेजा है, तो complete तो हो गया. पर when the sender himself makes a communication with the person, so then it gets complete by the feedback. So that's very important. This of by which we convey or we exchange communication or exchanging meaning between people. So we use a common set of symbols. और वो common set of symbols क्या होते हैं? Language is a common set of. So language is one of the common set. Now there are 3 V's. Language में एक जो communication उसमें 3 V's हैं. First is your verbal part. Second is your vocal part. Third is your visual part. That's how those 3 V's are, right? Verbal, to ask you, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से. अगर मैं कम्युनिकेशन को लेके चलूं, टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मैंने बताया आपको कि कम्युनिकेशन के 3 हिस्से हैं. एक वर्बल है, एक वोकल है, एक विजुअल है. एक कम्युनिकेशन की देखें हम तो 100% है. तो 100% में वर्बल का इंपॉर्टेंस कितनी है ऑन अ स्केल ऑफ 100? मतलब 100 में से वर्बल पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है? कैन यू प्लीज मैसेज मी. आपको क्या लगता है वर्बल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है? 3 पार्ट हैं, वर्बल, वोकल और विजुअल. वर्बल का क्या रोल है उसके अंदर? हाउ मच परसेंटेज वुड यू लाइक टू? प्लीज मैसेज में टेक्स्ट करते जाओ आप. मेरे को पता लग जाएगा कि कितना परसेंटेज आपके हिसाब से आपको लगता है वर्बल को आप कितना देते हो. 40, somebody saying 46%, 45%. Anyone else? I just got one message. Somebody says 50%. Kishori Patel says 50%. Okay, fine. And anyone else? Please be open up. Until you clear it out, you won't come to know. That's good. That 30, 45%, 60%. Wow. That's wonderful. मैं ऐसे ही चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करो सो दैट यू कम आउट ऑफ इट, यू स्पीक. आप बोलो तो तभी तो क्लियर होंगे. हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे इंप्रूव करेगा.
That's wonderful. 50, 60%. So I'll take it so much. I'll take it from here. So now it's saying somebody says 20% also. That's good. Right. So you will be all be surprised. आप लोग surprised होगे कि ये जो verbal portion है, that accounts to only 7%. 7%. सिर्फ 7% है, 7. बाकी का 93% is your vocal and visual. Vocal and visual. 93%. This verbal is only 7%. लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पीछे पागल हो रहे हैं. They are getting crazy. लैंग्वेज को दे रहे हैं इतना ज्यादा उसको वो एम्फसाइज कर रहे हैं लाइफ में कि ये एक अपने आप के अंदर अपने आप को वो मतलब अपने आप को निखार ही नहीं पाते हैं. वो बोलते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती. दैट्स अ ड्रॉबैक विद अस. हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं. हिंदी इज आवर मदर टंग. सो हमारी लैंग्वेज जिसमें होगी हम उसी में बात करना पसंद करेंगे. इट्स अ सिस्टम डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स. जो आ गया तो इंग्लिश आ गई. दैट्स फाइन. देखो लैंग्वेज लर्न करना उसको यूज करना इट्स गुड. इफ यू आर मल्टीलिंगुअल आपको 5-6 लैंग्वेज आती है नथिंग लाइक इट. आप चाइनीज से भी कन्वर्स कर सकते हो. आप रशियन लैंग्वेज में भी कन्वर्स कर सकते हो. दैट इज फाइन. इट्स देयर इज नो nothing wrong in it. But the thing is the accountability in communication for the language is just 7%. Just 7%. तो आप कैसे भी उसको वर्ड्स को यूज करो. वर्बल पार्ट आपका 7% ही अकाउंटेबल है. बाकी का पार्ट दूसरा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वाला लैंग्वेज को यूज कैसे करते हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. स्पीक कैसे बोलते हो, कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हो अपने आप को. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ एक क्लोजेस्ट एक जानवर है. गिव यू एन ऑप्शन लाइक से मंकी और चिंपैंजी. विच इज द क्लोजेस्ट टू अस. आपको क्या लगता है आदमी क्लोजेस्ट मंकी से है या चिंपैंजी से है? Do you have any answers? Monkey. Somebody says monkey, right? See? Wow, monkey. Right. Wonderful. I would like to just tell you that chimpanzee is the closest one. So they were researchers behind this. The one difference between this thing, like us and the chimpanzee, is speech. हम बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते. That is the main difference. The power of speech. क्षमता. तो लोगों ने जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने प्लान किया कि लेट अस डू एक्सपेरिमेंट्स विद चिंपैंजी. उन्होंने एक लर्निंग प्रोसीजर डिवाइस किया जिससे कि वो पावर स्पीच को चिंपैंजी के साथ, पर दे फेल्ड. Chimpanzees over the years of training or research work, वो लोग पावर ऑफ स्पीच नहीं डेवलप कर पाए. Right? They couldn't. They failed. So we have the power of speech. Nobody else. So power of speech is very important. So, but figuring it out, 93% is your vocal and visual. जो आपकी vocal है और visual है वो 93% है. And this language 93% इसको हम बोलते हैं अंडरकवर. जैसे अंडरकवर एजेंट होता है ना, पुलिस में अंडरकवर एजेंट होते हैं, जो CIDs में अंडरकवर एजेंट्स होते हैं. ये अंडरकवर लैंग्वेज है. कितनी है? 93%. So what is this undercover language? So it comprises of your facial expression. जो आपके चेहरे के भाव हैं. जो आप अगर हंस रहे हो तो उनको लगेगा आप हंस रहे हो. आप गुस्सा हो तो आपके माथे पे शिकन वो दिखेगा तो पता लग जाएगा गुस्सा हो. आपकी ये जॉ लाइन टाइट हो जाएगी बिल्कुल तो आप गुस्सा हो. तो these are all facial expressions. कॉन्टैक्ट कैसा बना रहे हो. अगर आपको इनकम्प्लीट नॉलेज होगी या आप कुछ झूठ बोल रहे होगे तो आपका आई कॉन्टैक्ट अपने आप ही बंद हो जाएगा. आई कॉन्टैक्ट. So people can easily judge from this. कुछ ये आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ छुपा रहा है. सिंपल एज दैट. तो इस अंडरकवर लैंग्वेज का इम्पैक्ट देखो आप, कितना बड़ा इम्पैक्ट है
कि आप सिर्फ देख करके ये जज कर सकते हो. The tone of voice. The tone of voice. How do you project yourself? आप किसी से प्यार से बोलते हो तो आप बोलोगे थैंक यू. अब आप बोलो थैंक यू तो ऐसा लगेगा कि डंडा मार रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो. So you need to with the expression you are using. If you are showing gratitude, so please use it softly. Thank you so much. You know, you need to convey the meaning, right meaning. अगर मैं किसी और तरह से बोलूंगा और बोलूंगा थैंक यू तो इट वुड नॉट कन्वे और लोगों को लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा था थैंक यू इसको असली में तो यू नो इट डजंट मीन सॉरी ब्लंटली सॉरी. यू शुड फील लाइक कि भाई सॉरी बोल रहे हो तो असली में एक्सटेंड करो अपने फीलिंग्स एक्सटेंड करो. तो यहीं पर वो डिफरेंस आ जाता है कि लोग परसीव कुछ और करते हैं आप कुछ और कर रहे हो. यू नो द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. हाउ डू यू स्टैंड, हाउ डू यू सिट, थिंग्स मतलब आप अपने आप को क्लोज रख रहे हो ओपन रख रहे हो. योर फिजिकल जेस्चर्स. आप कई लोग होते हैं जो यहाँ पर अपने हाथ को चीक बोन इधर लगा के चिन पे लगा के बात करते हैं. कई लोग हाथों को लॉक करते हैं. कई लोग फेस पे अपने दोनों हाथ रख के बात करते हैं. कुछ अलग अलग जेस्चर्स होते हैं. हर एक जेस्चर का एक मतलब होता है. So it is very important कि we should know all these things. अब emotions जो हैं हमारे जो emotions हैं they are very you must say they are non materialistic. ये materialistic बिल्कुल नहीं है. And they are mostly conveyed or used unintentionally. मतलब अगर गुस्सा आ रहा है आपको तो गुस्सा आ रहा है. अगर हंसना है आप हंस रहे हो. आपको रोना आ रहा है आप रो रहे हो. Right? So they are not materialistic. They are very unintentionally used. Unintentionally use करते हो आप इनका. अपने आप से होता है. So इस अंडरकवर लैंग्वेज को शेक्सपियर ने एक वर्ड दिया था. शेक्सपियर यूज्ड टू कॉल इट एज क्राफ्ट ऑफ स्माइल्स. क्राफ्ट ऑफ स्माइल्स. स्माइल की एक कला. This undercover language is a natural expression of our feelings. हमारी जो फीलिंग है और जो हम बोल रहे हैं उसका सिंक्रोनाइज तरीका होना चाहिए. So to leave a genuine or not so genuine मतलब अगर आप मान लीजिए आप say you are in college, right? You're in your college. कोई friend बाहर से they come to you and they call you and they say हम यहाँ पर आए हुए हैं and we need to meet. हम लोग मिलना चाहते हैं आपसे. तो आप क्या बोलोगे आपकी फ्रेंड को. आप क्या बोलोगे. वो फ्रेंड आपकी बाहर से आई है. She's come from वे मतलब किसी काम से आई थी बट अब वो बोलती है मेरे को तो 15 मिनट मेरे पास आधा घंटा है एंड आई एम लीविंग. पर आपकी क्लास है उस वक्त या जो भी ब्रेक चल रहा है. अब आप नाउ यू आर इन योर कॉलेज. डू दैट. अगर आपको अगर निकलना होगा आप यू वांट टू गो आउट एंड मीट हर सो नाउ यू विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज योर एक्सप्रेशन. आप जाओगे एचओडी के पास एंड यू विल से कि यू नो sir I'm not feeling well and I need to need to go take मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ. मेरे को लग रहा है कुछ फीवर टाइप का है कुछ मेरे को you tell all these things. But अगर until unless you convey it with the proper meaning, proper expression like the actors कैसे करते हैं. एक्टर्स को असली में रोना नहीं आता. असली में हंसते नहीं है but they pretend to do it. So this art to convey them. So I am not telling you to do such exercises. No, I'm not. This is just an example. कि अगर excuse मांग रहे हो आप कहीं पर जाना है आपको या कोई reason नहीं है आपके पास तो then you will do it like this. Otherwise आपको कभी भी आपको नहीं मिल सकती permission. So I'm not telling you to do such things. But yes, if you see the actors, they do it in this way. The situations don't change. The situations don't actually happen with them. उनके आसपास कुछ ऐसी कोई घटना नहीं होती है असली में जिससे वो रो रहे हैं. नो दे जस्ट प्रिटेंड कि वो रो. तो आपको भी फीलिंग्स आती हैं उनकी कि दिस एक्टर इज क्राइंग सो यू आल्सो दे आर. कितने सारे लोग होते हैं जो पिक्चर्स में हीरो हीरोइन को देखते हैं रोते हुए तो उनको भी रोना आ जाता है. आप सिर्फ देख रहे हो. अब उस वक्त में अगर आप म्यूट भी कर दूं ना टेलीविजन को या थिएटर में आवाज बंद भी हो जाए कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम है उसके घर पे उसके एंड पे या जो भी व्हाटएवर. द
undercover language, the importance of undercover communication language system. So communication system is very vast and we need to study each and every component in depth. हमको हर चीज का करना पड़ता है, तब जाकर के हम लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हैं, राइट? और अदरवाइज यू विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब क्या होगा कि कोई गलत मतलब समझेगा उसका और आपको गलत समझा जाएगा and there will be wrongly conveyed. Now I'll tell you an example. There was a well-established company in USA. It was a gift जो बनाते हैं ना, gift manufacturing company USA की, and उनकी tagline थी a gift from USA, a gift for lifetime. Like जैसा सबकी होती है ना, डर के आगे जीत है या ये दिल मांगे मोर, ये सारे कैप्शंस होते हैं सबके. तो इनका ये था कि a gift from USA, a gift for lifetime. तो अमेरिका में, यूएसए में बहुत अच्छा था मार्केट था, तो दे स्टार्टेड कि हम वेंचर आउट करते हैं, बाहर जाते हैं. लाइक यूके में गए, जापान में गए, तो दे वर सक्सेसफुल देयर आल्सो. उनके गिफ्ट बहुत अच्छी तरह बिके वहां पर, बहुत अच्छी तरह से. लेट्स एक्सटेंड अवर बिजनेस टू जर्मनी. जर्मनी में भी जाते हैं, तो उन लोगों ने जर्मनी में भी स्टार्ट करा. दे स्टार्टेड एट जर्मनी. अब दे फेल्ड, दे कंप्लीटली फेल्ड. उनको समझ में नहीं आया कि हो कैसे गया. जर्मनी में उनका प्रोडक्ट बिका ही नहीं. यू विल बी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो गया कि इतनी सक्सेसफुल कंपनी वो जर्मनी में आके कैसे डेडलॉक में फंस गई. जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है पॉइजन. तो अब आप टैगलाइन देखो, अ पॉइजन फ्रॉम यूएसए, ए पॉइजन फॉर लाइफ टाइम. मतलब जहर यूएसए से और जहर लाइफ टाइम का. वो जहर. तो अगर रिसर्चर्स, उनकी टीम होती, वो जाके जर्मनी में उनके जो डेमोग्राफिक है कि कैसे लोग हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लैंग्वेज में यूज करते हैं, until unless they do this research, लोगों ने रिसर्च करी नहीं. उन्होंने सोचा वहां सक्सेसफुल हुए थे तो यहां पर भी हो जाएंगे हम, तो लेट्स डू इट. आपको जो बात अपनी रखनी है किसी को सामने, तो यू शुड नो द पर्सन वेरी वेल. कि उसको, आपको मालूम होना चाहिए कि कहां से बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या है उसके दिमाग, क्या सोचता है, कंडीशंस है, ये सब अकाउंट में रखना चाहिए आपको. आप किसी को भी हैंडल कर रहे हो कम्युनिकेशन में, तो यू शुड नो, is he a government servant, is he a private sector servant, whatever, but you need to have that clarity. What happens is, आपके ना इंप्रेशन बनते हैं लोगों के ऊपर. जब आप सिस्टम है, आपका एक पैटर्न है, पैटर्न बन गया आपका कम्युनिकेशन करने का, राइट? उस पैटर्न का एक इंप्रेशन बनेगा. होगा कि भाई एक इस बंदे का एक इंप्रेशन बन गया, इसका एक इंप्रेशन बन गया, सबके इंप्रेशन बनते हैं. हम कास्ट क्या करते हैं, इंप्रेशन. अब वो असली में ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है. मतलब जैसा इंप्रेशन बना है वैसे नहीं हो आप. परसीव हो रहा है कि ये आंखें झुका के बात करते हैं, तो शायद ये झूठ बोलते हैं, डरे हुए हैं या बहुत नर्वस हैं. बट ये तो सिर्फ आप जानते हो या भगवान जानते हैं कि आप ऐसे हो या नहीं हो, राइट? लोग ऐसा परसीव कर रहे हैं आपकी आंखें नीचे रखने की वजह से. करते हो तो लोग ऐसा परसीव करते हैं ना. आपको तो ये पता ही नहीं था, आप तो आंखें नीचे करके बात कर रहे हो. यू हैव मेड इट एन हैबिट. आपने क्या करा है, आपने एक अपना इंप्रेशन कास्ट किया. क्योंकि आपका पैटर्न क्या है, आपका पैटर्न ये है कि आप आंखें नीचे करके बात करते हो. एज सिंपल एज दैट. बट उससे क्या हुआ, इंप्रेशन पड़ गया वो वाला. So it's very important how do you shape up your impression. Those impression ko, it goes there's a very interesting thing. कोई एक जना आके बोले, one person says you are a horse. अगर कोई एक जना आके बोले, but if two people come to and say that you are a horse, मतलब आपको कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में. 3 लोग ना आपको, तो यू शुड गो एंड बाय सैडल. जो काठी होती है ना घोड़े पर रखने के लिए, वो खरीद लेनी चाहिए.
हाउ अगर आपको एक जना बोल रहा है तो आप छोड़ दो, उस बात को नजरअंदाज कर सकते हो, पर दो तीन लोग एक ही चीज को बोल रहे हैं आपको, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लर्न फ्रॉम दैट, यू शुड करेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट. Now we'll come to the first thing of this, amongst the 5 things, the clarity. The first thing is clarity. Now clarity is the most important part, is the cardinal part of your communication system. You should be very clear both in your text and your speech. Both. Important, very important. Now for example, like एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एक मीटिंग कॉल करते हैं, बोर्ड मीटिंग. सो वहां पर सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए थे, लाइक राइट फ्रॉम योर कस्टमर केयर, राइट फ्रॉम योर प्रोडक्शन टीम, योर राइट फ्रॉम योर HR टीम, सारे लोग बैठे हुए थे वहां पर. डायरेक्टर सेड, आई थिंक वी आर गैदरिंग हियर फॉर द लास्ट मीटिंग. हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं शायद एक लास्ट मीटिंग के लिए. वहां पर ना सारे इमोशंस फैन होने लगे, मतलब इमोशंस की फैनिंग होने लगी, ब्रीजेस, कि ये क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ गई सब जगह, एंशियस हो गए लोग सारे के सारे कि क्या होने वाला है, क्या हमारी कंपनी बंद होने वाली है, क्या हमको कोई टेक ओवर होने वाला है इस कंपनी का, या कोई चीज डिसॉल्व होने वाली है, या मतलब कोई मर्जर होने वाला है, यू नो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स सबके दिमाग में आने लगी. सब ये सोचने लगे कि सर इनने आखिरी मीटिंग का बोला है, स्टार्टेड अप, ये सारा चीज सोचने लगे सारे लोग एकदम से. तो उस जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बोला था स्टेटमेंट, ही सेड, सॉरी टू इंटरप्ट यू. उन्होंने बोला, देखा ये सिचुएशन सारी खराब हो रही है, तो लेट मी से. तो ही सेड कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जैसा सुना है, आपको लग रहा है कि आपने सही समझा है, सुना और समझा दोनों चीज. आपने जो सुना है वो सही समझा है, पर मेरा मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि आपने परसीव किया है. I totally didn't mean what you have understood. मेरा मतलब ये था. फिर उसने एक्सप्लेन किया. He said कि हमारे रिजेक्शन रेट इतना ज्यादा है कि हम, हो सकता है ऐसे ही चलता रहा तो हमको बंद करनी पड़े कंपनी. तो ये लास्ट मीटिंग है. हमारी जितने एम्प्लॉयज हैं वो सबसे ज्यादा हैं उस सेक्टर में. इतने ज्यादा एम्प्लॉयज किसी ने नहीं रखे. फिर जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो सबसे पुअर है. हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कम सैलरी पे काम कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, तो ही सेड दीज थिंग्स लेटर ऑन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइडिया इज कि जो प्रिंसिपल आप बताना चाहते हो, इट शुड बी वेरी क्लियर. अब लाइक देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रस्ट होना बिल्कुल क्लियर कर देता है. तो योर आइडिया शुड एक्ट लाइक इन सल्फ्यूरिक एसिड. उसके अंदर कोई भी एज नहीं होनी चाहिए जो ब्लर हो. मतलब आपको किसी को, आप जब आप बोलो तो किसी को मौका मत दो कि वो उसके अंदर कुछ राइट कोई भी कमी निकाल सके. इट शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी क्लियर. So it's very important. You should. So like I'll demonstrate with you this there's a good exercise. I would love to share it with you. There's a sentence. I'll speak out the sentence. I never said she stole my money. एक simple sentence है. I never said she stole my money. अब आप लोगों ने मेरे को ये बोलते हुए सुना, तो आपने अपने मतलब निकाल लिए इसके, right? Okay? आप लोगों ने सबने एक मतलब निकाल लिया होगा उसमें. पर अगर मैं इसमें एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो है ना, उसको अलग अलग एम्फसाइज करूंगा, तो आप देखना कैसे मीनिंग चेंज होंगे इनके. जस्ट विटनेस इट, यू लव इट, आपको अच्छा लगेगा. अब मैं क्या करूंगा, फोकस लगाऊंगा सिर्फ एक वर्ड पे, एक एक करके. तो आई विल से, आई पे लगाता हूं पहले. आई नेवर सेड शी स्टोल माय मनी. भाई मैंने नहीं बोला, ये किसी और ने बोला है. मैंने क्या करा, आई पे ज्यादा एम्फसाइज किया, ज्यादा एनर्जी लगाई, जोर से बोला. आई नेवर सेड शी स्टोल माय मनी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि उसी ने पैसे चुराए. भाई किसी और ने भी चुराए हो सकते हैं. अब मैं आई नेवर माय मनी, मैंने बोला ही नहीं, आई डिडंट से इट. मैं सेड पे एनर्जी लगाऊंगा, आई नेवर सेड शी स्टोल माय मनी. तो बोले मैंने तो सिर्फ
मैंने बोला नहीं था, मैंने इनडायरेक्ट इम्प्लाई किया था इसको, दैट्स इट. अब नाउ व्हेन आई पुट इट ऑन अदर वर्ड लाइक शी, आई नेवर सेड शी स्टोल माय मनी. अब शी पे एनर्जी लगाई, शी स्टोल माय मनी. भाई किसी और ने चुराया हो सकते हैं, इसने नहीं चुराया. शी, मैंने ये नहीं बोला कि शी स्टोल माय मनी. किसी ने चुराए हैं पर इसने नहीं चुराए. Then I put my energy on stole, word stole. And she stole my money. Stole पे एनर्जी लगाई, she stole my money. तो क्या होगा? I considered it borrowed. उसने मेरे से उधार लिए. She took it from me on a borrow basis. उसने borrow किया मुझसे. फिर my पे लगाऊंगा तो I never said she stole my money. भाई मेरे पैसे, मैंने नहीं बोला कि मेरे पैसे लोग चुराए. उसने हो सकता है किसी और के चोरी करे हो. राइट. लास्ट वर्ड मनी पे लगाते हैं. आई नेवर सेड शी स्टोल माय मनी. तो सिर्फ कि शी स्टोल. आर यू गेटिंग मी? आर यू हियरिंग मी? Yes, sir, you are audible. ये बार बार बंद क्यों हो रहा है मैम? Somebody has muted you, sir. I am just removing it. Okay, not a problem. So depending on what energy levels or you put or what emphasize you do on a word, emphasize करोगे तो उसका सेंटेंस का मीनिंग बदलता जाएगा जैसे जैसे करते हैं. तो एक सिंपल सेंटेंस जिसका एक मतलब हो सकता है, उसके 6-7 मतलब निकल सकते हैं जब आप अपनी आवाज से, आप अपनी टोन से, आप अपनी वॉइस से उसको कैसे आप बोलते हो, किस पे एनर्जी लगाते हो. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. तो आपको ये सिंपल एग्जांपल से मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया. सो यू मस्ट नो व्हाट यू विश टू कन्वे. आप क्या बता रहे हो लोगों को, ये आपको क्लियर होना चाहिए. योर जेस्चर, जो आपके जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये उस वर्बल पार्ट के साथ मैच करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मैच करना चाहिए. यू शुड चेक योर पैटर्न. आपको देखना चाहिए कि आपके पैटर्न कैसे सही चल रहे हैं. कोई रिपीट करने को तो नहीं बोल रहा. लोग बोलते हैं यार फिर से बोलोगे आप, या आप फिर से रिपीट कर सकते हो. तो अगर ये बार बार आपको सुनने को मिल रहा है मतलब तो देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर. सो यू शुड ट्राई टू इंप्रूव अपॉन दैट. अगर आपको ये सब चीजें सुनने को मिलती है तो देन यू नीड टू वर्क अपॉन दोस थिंग्स. ये एबनॉर्मल एक्सेंट होता है, एक एरिया का एक एक्सेंट, को एक उस एक्सेंट को जानते ही ना हो. फिर टू लो और हाई वॉल्यूम ऑफ पिच. अगर वॉल्यूम ज्यादा है मतलब आपका, कई लोग होते हैं कि बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत जोर से. उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा अगर बाहर से जज करोगे आप तो जैसे कि वो बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर के हैं. यू नो, वो लाउड है, नेचुरली लाउड है. मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो, उनकी नेचुरली लाउड है. आप फोन पे देखते होगे कितनी जोर से बात करते हैं लोग, जबकि वो माइक्रोफोन जो फोन में लगा होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि आप धीरे से ही बोलोगे तो भी उतना ही आवाज जाएगी. पर लोग क्या करते हैं, अपना मतलब, लोगों को लगता है कि हम अपना मतलब बिल्कुल अच्छी तरह कन्वे करें, तो उसके लिए क्या करें, हम जोर से बोलें. नो सॉरी, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. अगर आप ज्यादा जोर से बोलोगे किसी चीज को तो लोगों को लगेगा कि डोमिनेटिंग है. इन एट ऑल कभी भी ये नहीं करना चाहिए. और अगर आप लो वॉल्यूम पे बोल रहे हो तो लोगों को लगेगा ये बहुत मतलब इंट्रोवर्ट है, अपने आप को छुपा के रखना चाहता है. तो लोगों को अलग अलग परसेप्शन होंगे. तो यू शुड नॉट बी लो वॉल्यूम्ड और हाई वॉल्यूम्ड, यू शुड बी मॉडरेट वॉल्यूम. और डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों को आप के साथ मतलब अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो. So it's very important you keep yourself, the volume of your voice modulated depending on the structure or the crowd or the people. Now there are people with express speaking. Express speaking is like जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी. They are very fast. अब आपको बोला और भैया रुको मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज. तो उनकी एक्सप्रेस स्पीकिंग की हो जाती है. Not speak in an
इम्प्रॉपर यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, कई लोग क्या करते हैं, लोग अप्लाई गलत करते हैं वर्ड्स को. अब फॉर एग्जांपल दिस एक सेंटेंस है, दिस इज द ओनली मेथड. अब लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे दिस इज द मेथड एंड एंड में लगा देंगे ओनली. तो पता नहीं, तो ये चीज एक सिस्टम होता है कि गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए वर्ड्स. फिर लोग लोकली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, विटनेस करते हैं, लैंग्वेजेस में यूज करते हैं. जैसे कई लोग बोलेंगे लाइट चालू करना, लाइट खोलना. लाइट एक ऐसी चीज नहीं है जिसको चालू करोगे या खोलोगे. Say that कि please switch off the bulb or switch on the bulb, switch off the tube light, switch off the fan, switch on the fan. You know, you अगर ऐसे वर्ड्स यूज करोगे, आप ऑन कर दो, ऑफ कर दो, तो समझ में आता है. हम फोन के साथ यूज करते हैं ऑफ कर दो, ऑन कर दो, बट लाइट के लिए बोलेंगे चालू कर दो लाइट, या लाइट का बटन डाल देना भाई, या खोल देना. What will happen is you will form a system of it. आपके you'll get into, मतलब ये जो पैटर्न होगा वो आपके अंदर आ जाएगा. अब नाउ you going out somewhere else, कभी मीटिंग के लिए या आपके बिजनेस रिलेशंस के लिए आप बाहर जाते हो, तो वहां के लोगों से मिलते हो, तो you might be sharing a room with someone. So then when you say such a thing, then that person would say what, क्या बोल रहे हो आप, उनको समझ में नहीं आएगा. या किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो आप, so you should try to use proper words, proper उनके उसको एसोसिएट करो जिससे क्लैरिटी आएगी. You should not use verbal viruses. अब वायरस क्या होता है, जैसे ये कोविड वायरस है, ये अपने आप जुड़ जाता है आपके साथ कहीं. वायरस जैसे छींक, खांसी, जुकाम, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं, आपको पता नहीं लगता कब आ गई आपके साथ. तो दैट्स हाउ वर्बल वायरसेस भी होते हैं, जो आपके वर्बल लैंग्वेज में आ जाते हैं, जो आपके तकिया कलाम बन जाते हैं. केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि कोई आपके साथ कोई चीज तो ऐसे नहीं जुड़ रही. कई लोगों की आदत बन जाती है, मैंने तो कहा था, ऐसे बोलते हैं, मैंने तो कहा था, मैंने कहा था ना. तो ये सब चीजें वही है जो ऐड करती हैं. कि एक बंदा हमेशा नहीं बोल सकता कि मैंने कहा था, you can't be happening like that. ये ऐसा हो नहीं सकता. तो इसलिए ऐसी चीज यूज नहीं करना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो इस एक्सरसाइज को ठीक करने के लिए? यू कैन ऑलवेज यूज take an help. You can record your voice and listen to it carefully so that you can work upon your accent also. Accent पे कैसे work करोगे आप? Newspaper जोर से पढ़ो आप. That's the best exercise. Newspaper आप जोर से पढ़ो 10 मिनट 15 मिनट रोज. आपको देखो कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड आता जाएगा. धीरे धीरे करके आप ग्रो करते जाओगे. ठीक वैसे ही जैसे कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता किसी भी चीज का. इट टेक्स टाइम. सीखने बैठोगे तो आपको टाइम लगता है. अब लोगों को बोलो कि शादी में जाना, डांस सीखना है, तो वो सीख लेंगे, वो बड़ा इंटरेस्ट लगा है. अब इस लैंग्वेज या कम्युनिकेशन की बात करो तो बोलेंगे कैसे करेंगे हम, क्यों करेंगे हम, जबकि दीज आर लाइफ चेंजिंग स्किल्स. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है इधर से. यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. So don't speak fast, don't speak loud. Take help of your family members or friends. They will tell them to please point out wherever I am wrong, whenever I am wrong, so that they can help you out with this, right? Avoid verses. Okay. So these are the things you should take care when you have to have clarity. Now comes conciseness. Now, conciseness is very important. Speaking, किसी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करना क्या होता है, उससे सब्जेक्ट डाइल्यूट होता है. यूजिंग मोर वर्ड्स, कुछ जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ना शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना, दैट इज जो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, पता लगा इतनी एक्स्ट्रा हो गई कि वो जो सब्जेक्ट था वही डाइल्यूट हो गया. तो स्पीक ट्रुथ, स्पीक सिंपल, speak short and take your seat. As simple as that. ऐसा रूल होना चाहिए. सच बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो, क्लियर बोलो, सिंपल बोलो और सीट पे वापस आके बैठ जाओ. That is it. So the gravity of expression है ना, वो बहुत important है. Like for example, if I say I am going to cricket stadium to watch a cricket match with my friends by a cab. मैं कल क्रिकेट मैच देखने क्रिकेट स्टेडियम में टैक्सी से. Now, I would have simply said कि मैं कल क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. जा रहे हो और क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच ही होगा, until unless कि हाँ कोई ऐसा करे कि हॉकी के स्टेडियम में क्रिकेट मैच कराए,
तो वो बात अलग है, आप बोलोगे भाई मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ हॉकी स्टेडियम में, देन इट्स फाइन। पर अगर क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो तो क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा ऑब्वियसली, तो यू डोंट नीड टू एम्फसाइज ऑन दैट। और या फिर आपके स्टेडियम बहुत सारे बने हो शहर में, तो आप बोलोगे मेरे को तालकटोरा में जाना है, मेरे को इंद्रप्रस्थ में जाना है, तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तब यू नीड टू एम्फसाइज कि कौन से स्टेडियम में जा रहे हो। पर अगर आपके शहर में एक ही स्टेडियम है, तो देन यू नीड टू जस्ट यूज सिंपल वर्ड, मतलब थोड़े से शब्दों में आपको बताना है अपने आप को। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो क्रिकेट मैच देखने, अपने 2 बार क्रिकेट यूज करो, क्रिकेट स्टेडियम में भी बोल रहे हो, क्रिकेट मैच भी देखने के लिए बोल रहे हो, तो क्रिकेट क्रिकेट क्यों बोलना है 2 बार, वर्ड यूज ही नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। और कैसे जा रहे हो किसी को मतलब ही नहीं है, आप स्कूटर से जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या है, वो है इट्स लाइक वैल्यू फॉर टाइम एंड टाइम इज मनी, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। तो एक सेइंग है, अरेबियन प्रोवर्ब है, वो बोलते हैं कि अगर आपको कोट बनवाना है ना, 7 बार कोट के कपड़े को पहले नाप लो काटने से पहले। यू शुड मेजर द क्लॉथ बिफोर कटिंग इट 7 टाइम्स। सो डू दिस एक्सरसाइज, जो ये कम वर्ड्स यूज करने की एक्सरसाइज है ना, आप चुटकी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप एक न्यूज़पेपर का कोई भी कॉलम उठाना एंड देन यू रीड इट। शुरू करोगे ना तो इंफॉर्मेशन डाइल्यूट भी नहीं होगी और आप देखोगे कि वही मतलब कन्वे हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। आप ये एक्सरसाइज करके देखना, आपको यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थॉट। एक कोई सी भी एक्सरसाइज, कोई से भी न्यूज़पेपर की कोई भी न्यूज रीड करना, आप उसको फिर एक पेन लेना और कट करते जाना जो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वहां पर। आप पता लगेगा आपको कि काफी कुछ रिपीट होता है वहां पर, जरूरत ही नहीं है उसकी। यू डू दिस एक्सरसाइज। So it's very important. Time is very important. Like for example, if there was a female instructor for time management. Now she was very unhappy. वो बहुत उदास थी क्योंकि उसको एक कॉलेज में से उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? कॉन्ट्रैक्ट था टाइम मैनेजमेंट सिखाने का। क्यों टर्मिनेट किया था? टर्मिनेट इसलिए किया था कि वो टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रही थी वहां पर, एंड शी यूज्ड टू कैरी हर लेक्चर्स ओवर द टाइम। मतलब टाइम से आगे निकल जाती थी वो। अगर उनको 2 घंटे दिए जाते थे तो वो 2.5 घंटे हो जाते थे उनके। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो लंच ब्रेक होता था, वो बच्चों का जो आर होता था वो कम हो जाता था। लंच आर होता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी सबको कि लंच आर कम हो गया। तो लोग, बच्चों ने कंप्लेंट करना शुरू करी कि हम आधे घंटे के लंच ब्रेक ले पाते हैं या 15 मिनट का ले पाते हैं। तो दैट्स हाउ, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर रहे हो। तो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत अच्छे तरह से ना सिंपल, अब जैसे लैंग्वेज, आपको कुछ चीज डिफाइन करनी है तो आपने क्या करा कि एक सेट ऑफ वर्ड्स को यूज कर लिया, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जियो और जीने दो, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, लेट लिव। या फिर कॉर्पोरेट के जो स्लोगन्स होते हैं, टेस्ट द थंडर, डर के आगे जीत है, ये दिल मांगे मोर, ये सारे चीज क्या है कि एक ब्रांड ने अपने आप को बताने की कोशिश करी है आपको, आप इस टैग से हमको याद कर लो, तो आपको याद भी रह जाता है। एज सिंपल एज दैट। ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, ये सब हमको लाइंस जो होती है ना, बहुत जल्दी दिमाग पकड़ता है हमारा। तो ये सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना आप अपनी स्पीचेस में यूज करोगे या कहीं पर यूज करोगे, तो यू विल फाइंड कि पीपल गेट एसोसिएटेड एंड पीपल वुड लव टू फील इंप्रेसिव अबाउट यू, कि आपसे बड़े इंप्रेस होते हैं बात करने में। और कई जगह जापान में तो ऐसा कल्चर है कि आपको ना एक लेग पे, मतलब एक पैर पे खड़े होकर के अपना स्पीच देनी पड़ती है। और अगर आप थक जाओगे और आपने दूसरा पैर नीचे रख दिया मान लो, तो आपको उस वक्त ही स्पीच खत्म करनी पड़ेगी। यू हैव टू एंड योर स्पीच। तो दे हैव मेड इट अ पॉइंट कि आप ज्यादा बोलो ही ना, सिर्फ टाइम के हिसाब से बोलो। तो उनने पैर को खड़ा करा दिया कि एक पैर पे खड़े करके दो, जिससे कि वो थक जाओगे और आप दे नहीं पाओगे। नो, अब इसका एम्फसाइज क्या है कि वी मस्ट नो, कि वी मस्ट नो, वी शुड नो एंड माइट। तो 3 हिस्से हैं, मस्ट, शुड एंड माइट। ये 3 पार्ट्स हैं आपके किसी भी बात के, की बात, कोई भी बात बताने वाले हो आप किसी को भी, उसके 3 हिस्से होंगे, मस्ट, शुड एंड माइट। अब मस्ट में क्या आता है? कोर। मस्ट इज व्हाट? अ कोर, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। तो दैट वुड बी टेकन फर्स्ट।
इसके बारे में बात करोगे, चीज होगी जो कि सेकेंडरी है, वो बाद में ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि टाइम है भी या नहीं टाइम। और माइट वो चीज हो सकती है जो कि आप उसको यू कैन जस्ट पुट इट अक्रॉस, कहीं पर भी उसका वो मतलब कोई स्केच के साथ या कोई किसी अलग तरीके से भी आप उसको बता सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि आप मान लो आप एक कार के BMW कार के शोरूम में हो, आप यू आर एम्प्लॉयड देयर, आप वर्क कर रहे हो वहां पर। आपको क्या करना है, BMW कार आप सेल कर रहे हो, राइट? अब कस्टमर आएगा आपके पास, तो वो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उसको चाहिए क्या। अब चाहिए क्या में क्या आएगा, एक होता है लग्जरी, दूसरी होती है आपकी सेफ्टी। लग्जरी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये पैरामीटर्स हो गए, ये डिफाइन हो गया। लग्जरी चाहिए या सेफ्टी चाहिए। तो अगर आपको पता लग गया कि क्लाइंट क्या, आपने पूछा उससे कि सर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या देखना चाहते हो आप, लग्जरी या सेफ्टी। आपकी कार में दोनों है, पर आपको एक अपनी प्रिपरेशन बनानी है उनके साथ कि वो क्या चाहते हैं। तो देन दे विल से सिक्योरिटी, ओके सर लेट्स सिट अक्रॉस, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बताता हूं या मैं बताती हूँ कि क्या चीज आपको है। तो नाउ सिक्योरिटी में क्या चीजें, अब आपको कार में क्या करना है, वो पॉइंट्स बताने हैं जो मस्ट हैं। मस्ट क्या है, मस्ट सिक्योरिटी में मस्ट है, एंड शुड बाद में, राइट? और माइट सबसे आखिरी में। अब क्या होगा, मैं मस्ट में बताऊं, मस्ट में आएगा कि आपके एयर बैग्स, गाड़ी में सिक्योरिटी के लिए एयर बैग, सेफ्टी के लिए लगे होते हैं एयर बैग्स। आप बताओ कि मेरी गाड़ी के अंदर ये 4 एयर बैग्स हैं सर, आगे वालों के लिए भी, वो बोलेगा वाओ। फिर आप बोलोगे कि मेरी गाड़ी के अंदर ECS है। अब एक ECS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलर होता है एक, तो वो लगा हुआ है जिससे क्या होता है कि गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होती ब्रेकिंग के टाइम पे। सो इट्स गॉट दैट। तो एंड जो हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यूज करी गई है, जो गाड़ी के चारों तरफ बीम्स लगे हुए हैं उसमें हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो हाई स्ट्रेंथ का है। एंड देन यू से कि यू हैव पास्ड ऑल द कोलिजन टेस्ट। इनमें क्या होता है, कार में ना कोलिजन टेस्ट होते हैं, टकरा करके टेस्ट करे जाते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका क्या फेल होगा, कैसे गिरेगी, कैसे मतलब अंदर घुसेगी, या जो भी चीजें, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इनको बोलते हैं हम इम्पैक्ट टेस्ट। तो आप बोलोगे कि हमने हमारी गाड़ी पे हमने सारे इम्पैक्ट टेस्ट करे हुए हैं, का शुड वाला पार्ट ये तो इंपॉर्टेंट है, उसको चाहिए ही था। अब आप माइट वाले पार्ट में अगर टाइम बचा है, उसके पास टाइम है, तो देन यू विल से कि सर हमारी कार में पूरा लेदर की अपहोल्स्ट्री है, और यू विल से लाइक सर माय कार हैज बोस का म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ही माइट हैव इट और नॉट, बट वो बोस के म्यूजिक सिस्टम के लिए नहीं आया कार खरीदने के लिए, राइट? He has not come for Bose का म्यूजिक सिस्टम, वो म्यूजिक नहीं सुनने में इंटरेस्टेड है। तो आपको सिर्फ वो हाईलाइट करना है पहले कि वो उसको चाहिए क्या, व्हाट डज ही वांट, और उसके बाद उसको आपको अरेंज करना है। अब उसके अंदर लेदर का अपहोल्स्ट्री है या दूसरी अपहोल्स्ट्री है, वो उसकी थर्ड चीज हो गई। तो वो जो कई पैरामीटर्स लिखे होते हैं कि मोबाइल से कनेक्टिविटी है मेरी कार के अंदर, यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ योर कार फ्रॉम मोबाइल फोन। तो आप कार अपने मोबाइल से कार को, तो वो उसका डिस्प्ले भी लगा होगा पीछे, तो यू कैन जस्ट पॉइंट आउट सर दीस फीचर्स आर अदर फीचर्स, वो आप पीछे एक वो लगा करके बता सकते हो कि ये लगा होगा ड्रॉप बैक पे, बैकड्रॉप पे लगा होगा, तो आप बता सकते हो ये सारे फीचर्स हैं सारे हमारे। तो दैट वे, सो यू नीड टू एम्फसाइज कि व्हाट इज you should and might, these are the most important classifications, right? Please do comment yes if you are getting my point across. Wow, yeah, Ashutosh saying yes, Roshila, Karpika ma'am, right, Suresh Pradhan ji. Okay, wonderful. Thank you so much. Thank you. Now we'll come to common sense. Now, common sense is very important. लोग क्या बोलते हैं? I would say that common sense is not so common. वो इतनी common है नहीं जितनी होनी चाहिए.
हम एक आम चीज देखेंगे, अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम वैल्यूज को समझते हैं लोगों की, कि किस कम्युनिटी से हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ये सारी चीज हमारे दिमाग में होती हैं, पर हम लोग भूल जाते हैं. दैट इज कॉमन सेंस. कॉमन सेंस का एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. एक डॉक्टर्स ने एक एनुअल गैदरिंग प्लान करी. डॉक्टर्स ने बोला कि एनुअल गैदरिंग प्लान करी. उन लोगों ने क्या करा, एक पार्षद को, जो काउंसलर होता है ना पार्षद, उनको बुलाया कि आप आइए, हमारे लोकल एरिया के ही वो थे पार्षद, उनको आ गए वहां पर. सो देन उनसे बोला कि आप एक कुछ शब्द बोलिए. तो पार्षद ने स्टार्टेड ऑफ कि वो डॉक्टर्स बताने लगे कि डॉक्टर्स बड़े हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर रोल मॉडल्स, दे आर ये सारी चीजें आई. तो सब लोग इंटरेस्टेड थे सुनने में, सब कुछ लगा सबको. फिर देन ही स्टार्टेड अपॉन द मेल प्रैक्टिसेस, मतलब उन्होंने बोला डॉक्टर ये सब होता है चीजें. तो वहां पर ये बड़ा अजीब सा माहौल बन गया वहां पर, क्योंकि वहां सारे डॉक्टर्स थे, तो उनको लगा यार ये क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में सब लोग थे. तो वो लिटरली उनको करके तभी खत्म हो गया उनका वो प्रोग्राम. सो यू शुड नो दैट व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट. यू शुड नॉट टॉक अबाउट पर्सनल इश्यूज. लोगों के पर्सनल इश्यूज पे बात नहीं करना चाहिए कभी भी. पर्सनल इश्यूज क्या हो सकते हैं, किसी कोई डिवोर्सी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है. तो यू शुड नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स. पॉलिटिक्स, यू शुड नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एट ऑल. क्या करते हैं, do not talk about the topics which produce, and always be prepared whenever you want to convey your meaning across. You should be well prepared. Preparation time depends. It can be एक दिन का टाइम हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, या सालों का हो सकता है. सालों का. It can be altogether years. Like for example, अब एक बिजनेसमैन था, एक फ्रेंड ने बुलाया अपने घर पे, एक पार्टी थ्रो करी थी उसने, तो वो वहां गया. तो देयर वर मेनी फ्रेंड्स. तो इस बिजनेसमैन को उसके घर पे रखा हुआ एक पेंटिंग बहुत पसंद आई. उसने अपनी खुद की, बिजनेसमैन ने पेंटिंग लगा रखी थी, उसको बहुत पसंद आई. तो उसने पूछा उससे कि भाई ये पेंटिंग कहां से ली, मेरे को भी करवानी है, ये मेरे को भी अब पास मेरे को भी चाहिए, ये दिस इज वेरी नाइस. ये मैंने इस पेंटर से करवाया है ये पोर्ट्रेट अपना, आप इनसे मिल लो. तो उसने उसका एड्रेस और टेलीफोन लेकर के वो नेक्स्ट डे उसके पास गया. तो ये सेड कि आपसे मेरे को पेंटिंग बनवाना है. तो पेंटर ने बोला ठीक है फाइन, मैं आ जाऊंगा सर कल, आपका आपसे मिलता हूं पहले, फिर आपसे डिस्कस करता हूं सारी चीजें, एंड देन वी विल प्लान अप. तो देन फाइनली दे डिड द पोर्ट्रेट. उनका पोर्ट्रेट बना दिया गया उनके स्टूडियो में. पोर्ट्रेट बना पेंटर के स्टूडियो में. तो देन वो पोर्ट्रेट उन्हें जब कंप्लीट हुआ तो उसने भेजा उसके पास, बिजनेसमैन के पास, विद ए इनवॉइस. वो जो बिल था वो भी भेजा साथ में. वो बिल था करीब 60,000 रुपए का. तो ये जो बिजनेसमैन ने जैसे ही देखा ये 60,000 रुपए, तो हिल गया. वो बोलता है ये मैंने पोर्ट्रेट बनवाया, तो बोलता है इतना महंगा, ये 60,000 बिल लगाया पेंटर ने. वो पेंटर के पास गया. पेंटर उसने बोला ये आपने जो बिल भेजा है 60,000 का, ये तो बहुत ज्यादा है. तो पेंटर ने बोला है कि ऐसा ज्यादा है, ये ज्यादा है बिल. तो उसने बोला आपने मेरे ऊपर जो काम किया है, मुश्किल से आपने 6 घंटे 8 घंटे मेरे ऊपर काम किया, बाकी के टाइम तो आपका स्टाफ मेरे. तो नाउ द पेंटर हैड टू आंसर. पेंटर ने बोला, तुम बोलता है कि वो जो 12 घंटे बाकी लोगों ने काम किया, 6 घंटे आपने किया, तो 18 घंटे. तो पेंटर ने बोला सर ये 18 घंटे नहीं है जिसका मैंने आपको बिल भेजा है. दिस इज नॉट द 18 आवर्स. 18 घंटे नहीं है सर ये. सर ये मेरी लाइफ टाइम की मेहनत है जिसको मैंने सीखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. इट्स वेरी क्रूशियल. ये मेहनत जो पेंटर बोल रहा है वो उसने अर्न करी है 10 सालों में, 8 सालों में, 10-15 सालों में. He has gathered this knowledge. So जो नॉलेज है उसने वो कुछ 8 घंटे में जो पेंटिंग बनाई उसमें तो सिर्फ 8 घंटे लगे, पर उसने नॉलेज जो यूज करी वो तो पूरे ईयर्स की ऑल टुगेदर. So he said, I'm not charging you for hours, I'm charging for the years. So it's very important. You
हैव टू हैव दैट लर्निंग प्रोसेस, सारा चीज आपके पास वो तैयार होना चाहिए जिससे कि आप अक्रॉस द सो यू शुड रिकॉग्नाइज पीपल कि कोई जो पेंटिंग्स मार्केट में अगर जैसे मिलती है तो हम सोचते हैं यार इतनी महंगी क्यों है, ये इसलिए महंगी है क्योंकि जो मेहनत करी गई है उसके पीछे वो बहुत बड़ी होती है। अब ऐसी होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे इंडस्ट्री में कई लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, राइट, कई लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पहले एक इंजीनियर की पोस्ट पे होते हैं, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, बहुत ऊपर जल्दी जल्दी राइज करते हैं आप। तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर कैलिबर, देयर लर्निंग एफर्ट्स। तो जब उनको रिकॉग्निशन मिलता है इसलिए ऐसा होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम कुछ चीज ऐसी कुछ खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अगले ने जो मेहनत करी है वो उसका चार्ज कर रहा है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि अगर वो बिजनेसमैन फ्रेंड जो जिसके घर पे उसने वो पेंटिंग देखी थी, अगर वो इतना उसके घर पे नहीं लगी होती या वो इतना पॉपुलर नहीं होता तो वो इस पेंटर के पास आता ही नहीं कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो आप। सो आपका बेंचमार्क होना चाहिए कि लोग अप्रोच करें आपको, यू शुड बी focusing on that. So it's important to pay gratitude to people when people say कि this is the cost. So you should understand the process कि ये कुछ एक छोटी सी चीज की नहीं है, it's all about your years together. आप मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचते हो तो आपकी years of preparation होती है, years of preparation. ये एक छोटी सी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है. So you should remember this principle. अब वो पेंटर ने I'll just classify the things, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पेंटर ने क्या क्या किया होगा। पेंटर ने क्या किया होगा, पेंटर ने अप्लाई किया प्राइमर, कैनवस जो होता है ना जिसपे बनाते हैं पेंटिंग, उस पे पहले प्राइमर लगाया, फिर उसने वो सारे ब्रश जो जाते हैं वो सारे ब्रश अरेंज करे, पेंट भी अरेंज किया। उसका जो स्टूडियो था वो बहुत अच्छी तरह लाइटेड अप था और एयर कंडीशनड भी था पूरा। अब ये एक प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए होता है उसको चाहिएगा कि वो क्लाइंट के बारे में जाने। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लाइंट के बारे में क्या जाने, क्लाइंट के बारे में ये जाने कि उसको किस टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है। बिजनेस के बारे में बात करना चाहता है, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहता है, पेंट मूवीज के बारे में बात करना चाहता है, या किसी और टॉपिक पे बात करना चाहता है, आर्ट के बारे में बात करना चाहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अबाउट कि क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट के दिमाग में क्या है, वो क्या खाना पीना पसंद करता है, उसको रिफ्रेशमेंट क्या होता है कि 10-12 घंटे पेंटिंग में लगते हैं। पेंट करना इतना आसान काम नहीं होता। पोर्ट्रेट आप बैठे हो बिल्कुल और आपकी पोर्ट्रेट बन रही है, तो इट्स वर्क ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं उसमें। तो यू शुड नो दैट, द पेंटर शुड नो दैट कि अगले को खाने के लिए क्या पसंद है। तो यू कैन अरेंज ऑल दीज थिंग्स सो दैट जो क्लाइंट है वो बोर नहीं हो और वो उसको मेरी टाइप की जगह है क्योंकि मेरे खाने पीने की चीजें मिल रही हैं यहाँ पर। प्लस उसको कौन सा म्यूजिक सुनना है पसंद है। अगर आपने उसको पसंद है कोई सूफी म्यूजिक, उसको गजल पसंद है, आपने गजल लगा दी तो वो तो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा ये तो घर जैसा माहौल हो गया, आप करो जैसा करना है आपको। तो 10 क्या वो 12 क्या 15 घंटे भी बैठ सकता है, 20 घंटे भी बैठ सकता है, दैट वुड नॉट बी एन इशू। पर अगर आपने वो डिस्को म्यूजिक लगा दिया, उसको पसंद है नहीं, तो फिर वो देन इट इज ए प्रॉब्लम, इट इज ए प्रॉब्लम। So you should understand, the core thing is you should understand your client. जिससे भी बात करना चाहते हो आपको उसके बारे में इंक्वायर करना चाहिए। और these days आपके लिए तो बहुत आसान है, आजकल तो फेसबुक है, उसकी 10 पोस्ट भी स्टडी करोगे तो you will learn easily कि उनको क्या इंटरेस्ट है किसी भी तरह से। This is very important, very important. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लान करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप क्या होता है कि आप चीजें प्लान करते हो और सिनेरियो चेंज हो जाए मान लो, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल अनटच्ड हो। मान लो आपको कोई बोलता है आपको प्लीज आइए आप एंड वी लाइक टू कॉल यू फॉर योर स्पीच, हाई वैल्यूड स्पीच, आप स्पीच देना हमारे कॉलेज में आके, हमारे स्कूल में आके। अब आपने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो देन एक पिक्चर बिल्डअप करी आपने क्या पिक्चर बिल्डअप करी, वो मैं कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज में एक ऑडिटोरियम होगा, वहां पर टेबल होगी, वहां सामने चेयर्स लगी होंगी, डाइस होगा, ये ऐसी ऐसी चीजें आप इमने इमेजिन कर ली, आपके दिमाग में आ गई, बोले आप ठीक है। अब आप क्या हुआ, उस दिन गए वहां गए तो आपको सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट मिला। वहां तो ऑडिटोरियम था ही नहीं, वहां तो ओपन स्पेस थी। अब आप
प्रिपरेशन और वो सब चीजें आप बोलोगे कि क्या हुआ, एकदम से चेंज ही हो गई सारी चीज, तो नाउ यू विल बिकम नर्वस कि ये क्या हुआ, ये सारी चीज, क्योंकि जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं रहा. तो योर प्रिपरेशन शुड बी लाइक दैट कि आप चाहे जिस भी कंडीशन में जाओ, यू शुड बी एबल टू डिलीवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है. दैट इज वेरी क्रूशियल. सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. एक क्या होता है, एक कंट्री साइड में एक छोटा सा घर थे काफी वहां पर उस एरिया में, एंड वहां से ना गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक मोटरवे, मतलब एक एक्सप्रेसवे निकालें, हाईवे. अब जो लोग रहते थे वहां पर उनको बड़ा प्रॉब्लम आया. उनको लगा कि ये तो बहुत नॉइज पॉल्यूशन होगा, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होगा इधर, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग. तो उसने अपनी क्वेरीज, उन्होंने अपनी एक क्वेरी बना करके उसने डाली. एक बंदे ने, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव जो था, उसने बोला कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज है. तो उनके जो मेयर था उसने फिर प्लान करा कि we'll give you 10 minutes, we'll put up a meeting across authority, उनके साथ आपकी मीटिंग कराते हैं, and you come up with your points, so we'll listen to you, हम लोग आपको सुनेंगे, आप अपने points रखना वहां पर, and then we'll conclude कि कैसे करना है उसको. बोलता ठीक है. So now thing was, में ये सारी चीजें थी कि ये एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन होगा वहां पर. एक चीज इंपॉर्टेंट एक और भी थी कि वो जो जगह थी वो एक अफ्रीकन वुड पैकर होता है, वुड पैकर एक बर्ड होती है, उसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट था, मतलब एक नेचुरल जगह थी रहने की, वुड पैकर की. तो उसने क्या करा, अपने 10 मिनट की तैयारी, अपने उसको बोला गया था कि आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे, आपको ये बोलना है. तो उसने 10 मिनट के लिए 10 पॉइंट जोड़ दिए, अपने लिख लिए, तैयारी करके गया वो. अब सिचुएशन क्या हुई, वहां पर उन लोगों ने बातें करना शुरू करी, सब लोगों ने. तो सबने बोले अपने अपने पॉइंट्स, ये सब बोले. अब इनकी बारी आई तो इनको इनने शुरू किया कि वहां तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा. तो मेयर ने एकदम से रोका और उन्होंने बोला कि उसने बोला कि अब नहीं, सॉरी, उसने मेयर ने क्या करा, उनको बोला कि टाइम, आपका जो टाइम है हमने 3 मिनट कर दिया, अब आपको, हमारे पास टाइम बचा नहीं, आपको 3 मिनट में बोल दो. तो अब 3 मिनट में उसने क्या करा, 3 मिनट में उसने ये बोला कि एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा, हम लोगों को रहने में बड़ा इनकन्वीनियंट होगा. और ये वाइटल थिंग क्या थी, वाइटल थिंग थी वुड पैकर के बारे में बताना भूल गया, जो कि एक नेचुरल हैबिटेट था. वो भूल गया कि एक नेचुरल हैबिटेट बर्ड के बारे में बोलना ही भूल गया वो. क्यों? क्योंकि उसने वो नीचे ऑर्डर में रखा था, जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी. ये एक नेचुरल बर्ड हैबिटेट है, तो दे कुड हैव टेकन इट मोर सीरियसली लेवल. उसने 6वां या 7वां टर्मिनेट हो गया 3 मिनट के अंदर. जब 3 मिनट के अंदर उसको बंद कर दिया गया तो वो पॉइंट रख ही नहीं पाया. सो यू शुड नो व्हाट यू वांट टू कन्वे एंड कीप द प्रायोरिटी ऑफ दैट थिंग ऑन द टॉप. सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करो जो इंपॉर्टेंट है. I hope you understand this point. So you should all mention the subject line in your mail के अंदर. अगर किसी को मेल भी डालते हो तो subject line of that important point is very important. Very important. कोई subject देख के समझ जाएगा कि यार ये बात कर रहे हैं हम. जाने की तो जरूरत तब पड़ेगी जब वो सोचेगा उस बारे में, पर पहले ही आपने कुछ नहीं लिखा ही नहीं सब्जेक्ट के अंदर, एक मेल डाल दिया, तो कोई भी नहीं पढ़ने वाला उस चीज को. Right? There is a vivid thing in your element in your speeches. Like the vivid is about interesting, arresting. एक picture होती है, बहुत arresting होती है, आप उठने नहीं पसंद करते कुर्सी से. So your listeners should be like that. They should be seated. They should always love to listen to you. वो आपको सुनना पसंद करें, आपकी impressive voice को देखें, मतलब और वो कैसे बनती है, बहुत टाइम के बाद आप सीख पाते हो. तो उसके अंदर आप फ्रेजेस कैसे यूज करते हो, मेटाफोर कैसे यूज करते हो, you have so many things in this. तो विविडनेस लाना एक बहुत टफ टास्क है. it's very tough task. Vividness लाना अपनी स्पीच में, it's like you become someone who is loved across. सब लोग सुनना पसंद करते हैं उसको. So that's wonderful. That's most wonderful thing. So vividness is very important.
and not all are gifted by this vividness. So it's very vital. To vividness, I'll just craft it in example. Now, इसमें क्या होता है कि आप अब मेटाफोर यूज करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू से कि ये इसके शब्द, यू नो, योर वर्ड्स पियर्स लाइक ए नाइफ, मेरे दिल को चीरते हुए चाकू की तरह निकल गए. जो ऐसे चीजें सेंटेंस मेटाफोर यूज करते हैं उनकी एक बात ही अलग होती है. जैसे नवजोत सिंह सिद्धू को आपने सुना होगा या फिर मोदी जी को सुना होगा. दे ऑल गिव सच गुड एग्जांपल्स, मेटाफोर यूज करते हैं. दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरेटर्स. यू लव टू एंगेज विद देम. तो ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी वाइटल इज कर्टेसी. कर्टेसी क्या होती है? कर्टेसी ये होती है कि यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी थैंकफुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. अब क्या होता है, कोई टॉप करता है तो आप बोलोगे ये तो इसने तो टॉप किया है, एंड यू नो यू जस्ट सरकास्टिकली गो, मतलब बोलोगे. यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गो अक्रॉस एंड से कांग्रेचुलेशंस, इट वाज, आई एम सो हैप्पी दैट यू टॉप्ड. जाके बोलो, अप्रोच करो. व्हाई वांट टू, आप ऐसा क्यों बनना चाहते हो कि आपको लगे ऐसा कि आप लोग आपको यू नो आप बस यही बोलोगे कि वो टॉप, उसने टॉप किया. अपने आप तक क्यों रखना चाहते हो? एक्सप्रेस करो, गो देयर, प्रेज. अगर कोई भी चीज, अगर आपके मम्मी ने आपको एक अच्छा एक रेसिपी बना के दी है खाने के लिए और आपको बड़ा अच्छा लगा, तो टेल हर दैट मजा आ गया मम्मी आज आपने, यू नो, यू शुड बी ग्रेटिट्यूड. यू शुड, आपको अपने ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए. आपको बोलना चाहिए कि वाओ मजा आ गया आज तो खाना, इट वाज सो टेस्टी. यू शुड ऑलवेज पे योर ग्रेटिट्यूड. तो जैसे ही किसी ने टॉप किया आप जाके कांग्रेचुलेट करो. जिसने जो भी चीज करी आप उसको कांग्रेचुलेट करो. या फिर किसी ने कुछ आपको दिया तो बी थैंकफुल टू दैट पर्सन. यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड. अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, भले आप टॉपर की लिस्ट में ना हो, नहीं हो, कोई बात नहीं. आप हो सकते हो कि आप यू आर 21st इन रैंक, बट अगर आप ऐसा करते हो तो वो दे विल रिमेंबर यू कि दैट यू आर अ नाइस पोलाइट पर्सन. So that is more important. The core values are important. Like for example, I'll just convey you one example about this. Now this was this IPL match. तो उसमें क्या था, ममता बनर्जी बैठी हुई थी और कोलकाता में ये मैच चल रहा था. शाहरुख खान की एक टीम है वहां पर, तो वो भी आए हुए थे वहां पर मैच देखने के लिए. तो वो ममता बनर्जी से मिले. अब बातें चल रही थी तो ममता बनर्जी जो थी वो बोले जा रही थी एंड शाहरुख खान सुनते जा रहे थे उनकी बात, बोल ही नहीं पा रहे थे. बीच बीच में वो हाँ ना करते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो इतनी देर में उनका पीए आया कि मैम वी नीड टू लीव, हमारा टाइम हो गया, हमको दूसरी मीटिंग के लिए जाना है. तो ममता बनर्जी स्टूड अप, खड़ी हुई, तो शाहरुख खान भी खड़े हो गए. एंड ममता बनर्जी सेड कि मिस्टर शाहरुख खान, यू आर एक्सट्रीमली अ गुड स्पीकर. तो जबकि यू नो शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला था. All the talks were done by Mamta Banerjee. पर उन्होंने बोला you are good speaker. तो शाहरुख खान could have said कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपसे, मैं आप ही बोलती रही हो, मैं तो सिर्फ आपको हाँ करा था सिर्फ. तो नहीं, शाहरुख खान ने didn't do that. He was courteous. He was very courteous. He said, thank you ma'am and you were a good listener. तो उसने बोला कि आप भी एक बहुत अच्छी listener थी, तो I would love that. तो you should be like this. You should be courteous. You know, you should not be like कि upfront करो हर चीज को, वो करो. You should be very courteous about these things. You should be a wonderful speaker, great listener. This is very important. So I would at last tell you one thing that you know we all people are हम लोग क्या कैरी अवे हो जाते हैं. मोबाइल फोन्स को देखते हैं, मोबाइल फोन में बड़ा इंटरेस्ट है, यू नो, कौन सा ब्रांड, कौन सी चीज, क्या है ये. और या फिर जैसे किसी की तैयारी करनी है, कोई आजकल तो वेडिंग जैसे शादियां होने लगी हैं, तो उसमें डांस की तैयारी करनी है, आपको परफॉर्म करना है, तो आप सीखोगे जाकर के वहां पर कोरियोग्राफर को बोलोगे कि मेरे को सिखा दो डांस कैसे करते हैं, स्टेप करना है मेरे को या ये करना है. यू नो you do out all these things, but when it comes to making you smart, making you more presentable, making your personality reform, आप पीछे हट जाते हो. आप सोचते ही नहीं हो उस डायरेक्शन में कि अपनी पर्सनालिटी रिफॉर्म कैसे करें.
You don't want to invest time, you don't want to invest money. आप करना ही नहीं चाहते. आप फालतू की चीजों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई ठीक है. But I am telling you, start investing in yourself. आप अपने ऊपर पैसे लगाओ. You would see the results कि आपको आगे कितना deliverables मिलता है इनका. तो you should all try to acquire these soft skills. Soft skills सीखना चाहिए आपको. ये सारी चीजें, communication skills, your posture, body language, everything is very vital. You should all acquire these things. आपको कभी ना कभी आपकी लाइफ में ये काम आएंगी. And now government of India is working upon that. उन लोगों ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2020 की, so it is working on soft skills. वो इन्हीं सारे स्किल्स पे वर्क कर रही है. तो जब आपके कंपटीशन में इतने स्किल्स हो गए, नाउ फॉर सिंपल एग्जांपल, आप कॉलेज में पास आउट करोगे तो कैंपस इंटरव्यू होगा आपका. अब आप सब लोग एक तरह के ड्रेस कोड में जाओगे. वहां पर सबके पास सेम सॉर्ट ऑफ कपड़े होंगे. जैसे लड़कों का मैं एग्जांपल देता हूं तो दे विल बी वेयरिंग व्हाइट शर्ट, ब्लू ट्राउजर, ब्लैक शूज विद अ टाई. ऑल विल बी लुकिंग सेम. सब लोग एक जैसे ही दिख रहे होंगे लगभग. और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी देखोगे ना तो सबके फर्स्ट डिवीजन. ओके फाइन, फर्स्ट डिवीजन, सेम कपड़े, सेम सब कुछ. रहेगा वो जो एम्प्लॉयर है वो किसको रखेगा? He would be noticing you, he would be examining you, they'll judge you on your soft skills. कि आप चेयर पे आते हो तो आप चेयर पे कैसे अप्रोच करते हो, कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, क्या यूज करते हो अपनी लैंग्वेज में. So we are all missing those things now. So we need to upgrade ourselves. हमको अपने आप को बहुत ऊपर लाना है जिससे कि हम कंपटीशन में ला सकें अपने आप को. Otherwise we are all out of competition. हमारा कोई कंपटीशन नहीं है. आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, अब ये आफ्टर कोविड टाइम्स इट इज गोइंग टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव होते आ रहा है. तो यू नीड टू कीप अप योरसेल्फ अपग्रेडिंग. आप अपने आप को अपग्रेड करते जाओ. जितना भी टाइम मिले अपने आप में अपग्रेड करो अपने आप को, सो दैट यू आर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली. आपको कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि आपको सब पता है, आप सब जानते हो. एंड थैंकफुली फॉर द फ्यूचर जनरेशन, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू वर्क अपॉन दीज स्किल्स. वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है हर जगह पर, सो दैट एवरीथिंग वुड बिकम गुड फॉर इंडिया. सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर इट. एंड इफ यू हैव